Hello students, I am Dr. Nilesh Sawant and I am back today with a new lecture on the topic Organic Chemistry's Basic Principles. So in the last video we started with the introductory part. We also saw the types of hybridization which a carbon atom can show. We also saw the characteristics why organic compound contains carbon only. So what are the features of carbon which has led to such a huge number of compounds, and today we study it in a separate part of chemistry, that is organic chemistry. So we saw that, and in the last video we saw about the sigma and pi bonds also. So as I told you in the last video, we'll see some of the examples to go with it. How many sigma, how many pi bonds, plus the type of hybridization and geometry. I've already explained you, whenever carbon compounds, so you can take this as shortcut notes for you. कार्बन कंपाउंड जनरली जो होते हैं, if they are sp3 hybridized carbon, generally the geometry will be tetrahedral. ठीक है, and when it is sp3 hybridized there are 4 sigma bonds. ठीक है, then sp2 hybridized carbon generally has a planar geometry. And how to identify a sp2 hybridized carbon? So that carbon will make 3 sigma bonds and 1 will be pi bond. ठीक है, so like this you can represent 4 sigma bonds in this way. Pi bonds you can represent it in this way. So these are the 3 sigma and this is one of the pi bonds. Then if it is sp hybridized, generally the geometry of that organic compound will be linear, and what it consists of is 2 sigma and 2 pi bonds. And how they are represented? They can be represented in 2 ways. One bond, these are the 2 sigma and these are the 2 pi, or you can write simply double bond on both sides. So this is sigma, this is sigma, this is pi, this is pi. So this is how you can remember. Then as I told you, in case of bond length, ठीक है, bond length is larger for sp3 hybrid carbons than sp2 then sp, but in terms of electronegativity, as I told you, सबसे electronegative carbon कौन सा होगा, मतलब that is sp hybridized carbon, because it has 50% s character. Then sp2 and सबसे least electronegative will be sp31. So these are the takeaway points, ठीक है, जो तुम first lecture से ले सकते हो. So इतना काफी लिख लो and then you have to just put into practice. अब कैसे, तो हम कुछ examples इसके लेते हैं. चलो इधर ही एक एक हम ले लेते हैं. Suppose question है CH3C triple bond C CH3 तो हमको बताना है इसमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है. तो मैंने जैसे बताया था, सभी सिंगल बॉन्ड्स है तो sp3, एक डबल बॉन्ड कर रहा है sp2, एक तो एक ट्रिपल बॉन्ड कर रहा होगा, या तो डायरेक्ट एडजेसेंटली डबल बॉन्ड कर रहा है, मतलब sp. तो यहाँ पे देख सकते हो CH3, 3 sigma bonds and this one, so this carbon is surely sp3, but this two are involved in triple bonds, so इन दो कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp. यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, तो इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम एक और देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH. अगर मैंने अब पूछा कि इसमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है, तो ऑब्वियसली 3 सिंगल बॉन्ड्स एंड फोर्थ वन ये है, so this is sp3. Here you can see this carbon has made a double bond, so surely this is sp2. Then this has made only single bonds, so this is sp3, this is sp3, this is triple bond sp, this is triple bond sp. तो ये लीनियर होगा, ये फिर एंगुलर होगा, CH फिर थोड़ा नीचे लगा रहेगा and ये नीचे, so it will give me a planar shape. So at this position this can be the shape of that compound. अब इसमें
सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने, वो हम देखेंगे। तो चलो एक एक क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हेन आई से, इफ आई एम जस्ट राइटिंग इट इन द डैश पैटर्न, ओपन स्ट्रक्चर जो है उसका वो ड्रॉ कर रहा हूं मैं। सो इफ आई ड्रॉ इट इन दिस वे, सो ये अगर क्वेश्चन है इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने, तो देखोगे अगर इस कार्बन को देखोगे पहले, ये वाला कार्बन, सो देयर आर 1 2 3 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। Here you can see single sigma bond, and even this is sigma. So one carbon sigma bond over here, which will be this. Second के लिए अगर हम बात करें ये वाले कार्बन का, तो ये सिग्मा है, then this is sigma, but these two are pi bonds. Then again this is sigma, तो ये कार्बन में सिग्मा है, ये कार्बन में एक सिग्मा और दो पाई है। Then ये H को मैं थोड़ा ऐसा लिख सकता हूँ, so this is sigma, even this is sigma, but this one is pi. So how many pi bonds? 1 2 3 pi bonds, and rest of all are sigma bonds. तो एग्जाम में कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि ये स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई। तो देखो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, CH3, सेम एग्जांपल, सिर्फ यहाँ लिख रहा हूँ, CH3 CH CH डबल बॉन्ड CHH। सो क्वेश्चन आता है इसमें कितने सिग्मा कितने पाई। तो देखो जो मैं सर्कल करूंगा वो सिग्मा है, या ठीक है। सो दिस CH इज सिग्मा, दिस CH इज सिग्मा, दिस CH इज सिग्मा, 1 2 3, इवन दिस इज सिग्मा, ठीक है। तो दिस इज 4, इवन दिस इज सिग्मा बिटवीन दीज टू, तो 5, इवन दिस इज सिग्मा 6, इवन दिस इज सिग्मा 7, this is 8, this is 9, and this is 10. So it has 10 sigma bonds. फिर उसमें कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन भी है। Then these two are pi bonds, and this one is a pi bond. So there are 3 pi bonds and 10 sigma bonds. ठीक है? So there are 10 sigma and 3 pi. इस तरीके से तुम लोग उनके सिग्मा और पाई निकाल सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट वन, अगर सपोज ये दिया है क्वेश्चन, so this is nitride, this is ethane nitride, तो अब कितने सिग्मा कितने पाई। so this is sigma, this is sigma, and this is sigma 3, this is 4, and this will be 5. so there are 5 sigma bonds, but these two are pi bonds, so there are 2 pi bonds. next दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ये 1 लिख रहा हूं, ये 2, फर्स्ट कार्बन जो मैंने वहां लेबलिंग में फर्स्ट किया है, एंड जो सेकंड कार्बन जो मैंने लेबलिंग में सेकंड लिखा है वहां पे, क्योंकि एक्चुअली IUPAC नेम वाइज ये पहला ये दूसरा है। सो इनका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है। अब देखो ये तो 4 सिंगल कर रहा है, तो श्योरली ये वाला sp3 होगा, बट ये एक सिंगल और 3 मतलब एक साइड से ट्रिपल कर रहा है, तो श्योरली दिस विल बी sp हाइब्रिडाइज्ड। सो ऐसे भी क्वेश्चंस एंट्रेंसेस में आते हैं। सबको समझा है होपफुली, तो इस तरीके से हम लोग ये लिखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक टेक्स्ट बुक में दिया है इज हाउ टू ड्रॉ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो इसके 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है। पहला वाला एक तो लुईस डैश स्ट्रक्चर, एक्चुअली लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, लुईस डॉट, बट हम डॉट की जगह डैश लिखने वाले हैं, डैश स्ट्रक्चर। सो सपोज इफ आई वांट टू राइट मीथेन, अब नॉर्मली हम मीथेन कैसे लिखते हैं, ऐसे 4 डॉट्स ऑफ दिस, 4 डॉट्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो इस तरीके से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं, पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय अ डैश। सो व्हेन वी पुट 1 डैश, ठीक है, व्हेन वी पुट 1 डैश, इसका मतलब ही है कि वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल डैश मेक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस वक्त जब हम डैश स्ट्रक्चर लिखते हैं, सो वी राइट इट इन दिस वे। सो मीथेन का आएगा ऐसे। इफ यू वांट टू राइट मीथेनॉल, तो सिंपल CH H। so here you can see I am writing each of the bonds separate like this. so this is known as the complete dash structure. so dash structure में तुम देख सकते हो हर एक बॉन्ड तुम्हें सेपरेटली दिखाना है, ठीक है, with the dash showing between it, ठीक है। सिंगल डबल होगा तो भी डैश, तो
one dash represents two electrons. One dash represents, so it represents a bond and one bond is made up of two electrons sharing, single bond की बात कर रहा हो तो ठीक है. नेक्स्ट अगर ऐसे ही क्वेश्चन लिखना है मुझे प्रोपीन, सो प्रोपीन के लिए हम क्या लिखेंगे, उसका ओपन डैश स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. सो देख सकते हो CH3 CH CH2, सो 1 2 3 एंड प्रोपीन. सो ये जो डैश, इसे हम कहते हैं डैश स्ट्रक्चर, लुईस डैश स्ट्रक्चर्स, जिसमें every bond is shown separately, every bond is shown separately and we can write it in this way. But problem होता है ये ऐसा हर बार बड़े वाले स्ट्रक्चर्स में ऐसे लिखेंगे तो काफी टाइम जाएगा. सो इसका एक शॉर्टकट मतलब लिखने का तरीका भी है जिसे हम कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला. ठीक है, ये तो था डैश स्ट्रक्चर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो हम डैश से दिखाएंगे. सो दिस इज द वे वी कैन राइट इट. ठीक है, सो डैश स्ट्रक्चर्स. ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो वो है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर. नेक्स्ट जो है वो है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर. कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में अब ऐसे डैश, मतलब डैश नहीं दिखाने सिर्फ, सो हम क्लब करके लिखेंगे. मतलब इफ सपोज आई वांट टू राइट 2 क्लोरोप्रोपेन. ठीक है, अब इसका डैश स्ट्रक्चर अगर मैं निकालूं, डैश स्ट्रक्चर, तो प्रोपेन है तो 1 2 3, 2 पे क्लोरो, बाकी जगह पे क्या भर देने हैं H. सो बाकी वैलेंसीज तुम लोग H से भर दोगे, डैश H डैश. सो दिस इज द डैश स्ट्रक्चर. सो 2 क्लोरोप्रोपेन हम ऐसे लिखेंगे. बट व्हेन वी वांट टू राइट द कंडेंस्ड फॉर्म, सो ये डैश देने की जरूरत नहीं, तुम क्लब करके लिख सकते हो CH3 CH CH3 and this will be Cl. सबको समझा है? So this is the open dash or dash structure or complete dash structure. This is the condensed version. So normally हम ऐसे ही लिखते हैं, अगर reactions में है तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. And इसका एक वर्जन है bond line, जिसमें हम कार्बन्स नहीं लिखते, हाइड्रोजन्स नहीं लिखते, we just represented by a line. So इसको हम बोलते हैं dash बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. सो अगर हम इसी को लिखेंगे, वैसे ये हम लोग वापस पढ़ेंगे जब हम IUPAC नेमिंग देखेंगे. IUPAC नेमिंग के वक्त एक बार वापस मैं इसको शॉर्ट में रिवाइज करूंगा, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो मैं कुछ तीनों तरीकों से ड्रॉ करके तुम्हें समझाऊंगा. सो बॉन्ड लाइन का मतलब क्या, एवरी कार्बन इज देन डिनोटेड बाय अ कॉर्नर, तो लाइन. So every corner represents a carbon. अगर कोई ब्रांच है तो तुम लोग उसे दे सकते हो एंड लिख सकते हो, and this represents what you can say the bond line. So every corner represents carbon, और उसके हाइड्रोजन भी उसमें हम लोग implicit पकड़ते हैं, सिर्फ जो दूसरे होंगे वो उन्हें ब्रांच की तरह हम लोग यहाँ लिखेंगे. ठीक है, so in this way this is the dash, this is the condensed and this is the bond line. अब जैसे एग्जांपल है N-हेक्सेन. अब N-हेक्सेन का मैं तीनों फॉर्म लिख रहा हूं. सो व्हेन आई वांट टू राइट डैश स्ट्रक्चर, तो इसको ओपन अप करके लिखते चलो भाई. तो देखो दिस इज द 3 एंड फिर हर एक को क्या लगेगा H. ठीक है, हर एक के बॉन्ड्स हमें भरने हैं. एवरी कार्बन शुड मेक 4 बॉन्ड्स, सो विल मेक श्योर ये वो बना है. सो दिस इज द ओपन डैश स्ट्रक्चर ऑफ N-हेक्सेन. यही कंडेंस्ड लिखना है. सो आई कैन राइट इट इन दिस वे, CH3 CH2 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 CH3. मैं और भी कंडेंस्ड वर्जन में इसे लिख सकता हूं. और भी कंडेंस्ड वर्जन मतलब सिंपल CH3. अब ठीक से देखो CH2 कितने बार आया है, 1 2 3 4. सो आई कैन राइट इट इन ब्रैकेट एंड 4, which means 4 times and again CH3. So ये उसका और भी कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गया. So ये कंडेंस्ड है, ये तो और भी उसका कंडेंस्ड वर्जन हो गया. और जब यही मुझे बॉन्ड लाइन दिखाना है, so 1 this is 2 this is 3 this is 4 this is 5 this is 6. So why we are putting those corners, because every corner is representing a carbon. So 1 2 3 4 5 6, that's your hexane.
ठीक है। सो ये एक ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और उसको दर्शाने के ये 3 फॉर्म्स है, द डैश स्ट्रक्चर, द कंडेंस स्ट्रक्चर एंड द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। एडवाइस तो मेरी ये रहेगी हम लोग ज्यादातर इसी का इस्तेमाल करते हैं, बट एंट्रेंसेस में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हो कैसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर बच्चे कंफ्यूज ये क्या है, तो सबको पता होना चाहिए एवरी कॉर्नर इज कार्बन, तो 1 2 3 एंड दिस इज कार्बन एंड दिस इज Cl, बाकी उसके वैलेंसीज भर दो बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, तो कार्बन के अलावा ज्यादातर दूसरा टेकन फॉर ग्रांटेड एलिमेंट इज ऑलवेज हाइड्रोजन। सो ये उसका कंडेंस, ये उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये उसका कंडेंस स्ट्रक्चर। तो होप सो हम लोग इनके बारे में और पढ़ेंगे व्हेन वी सी द IUPAC नेमिंग्स, ठीक है। और IUPAC नेमिंग्स में हम ये थोड़ा विस्तार से देख लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है इसका क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। चलो देखते फटाफट क्या है ये। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आज क्लासिफिकेशन यही देखेंगे, दैट विल बी। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली आर क्लासिफाइड इनटू 2 एज, हम उन्हें एलिफैटिक बोलते हैं या एलिसाइक्लिक, या इनको सादी भाषा में ओपन चेन कंपाउंड्स हम इस नाम से जानते हैं, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड्स, या तो हम इन्हें साइक्लिक, दूसरा जो है उसे क्लोज्ड, या तो हम इन्हें रिंग कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। So basically all the hydrocarbons are divided in these 2 basic forms, aliphatic open chain, cyclic that is or closed or ring form. So simple, if the carbon chain is straight with free ends, मतलब 2 carbon ends free है, open. If they are closed in this way, फिर उसमें डबल बॉन्ड होगा जो भी है, बट वो रिंग फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है, सो हम उसे क्लोज या रिंग कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये 2 टाइप्स हैं। एलिफैटिक डिपेंड करता है कि अब उनमें बॉन्ड्स कैसे हैं, तो इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज ऑल सिंगल बॉन्ड्स, सो हम उसे सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, एंड उनमें अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन बनाता है तो हम उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। सो ओपन चेन में 2 टाइप्स होते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया ब्यूटेन। सो ब्यूटेन की बात करते हो तो इसमें कार्बन देखो, ऑल कार्बन्स हैव मेड रादर सिंगल बॉन्ड्स, सो हम इन्हें ओपन चेन एलिफैटिक बोलते हैं, एलिफैटिक सैचुरेटेड, और इन्हीं को फिर हम लोग बोलते हैं अल्केन्स। होप सो सबने 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ है। सो व्हेन अ कार्बन हैज ओपन स्ट्रक्चर विद ऑल सिंगल बॉन्ड्स, it is said to be saturated, so alkanes. So alkanes are defined as what you can say, saturated aliphatic organic compounds generally which contains carbon carbon single bond. तो ये उनका डेफिनेशन है। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड में डिपेंडिंग कि वो डबल कर रहा है कि ट्रिपल, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2. वी नो दैट alkenes and alkynes. So when carbon makes carbon carbon double bond, we say alkene. When carbon makes triple bond, we say alkyne. तो definition यही है। Alkenes are defined as unsaturated aliphatic hydrocarbons or organic compounds containing carbon carbon double bond. Alkynes, these are unsaturated aliphatic organic compounds containing carbon carbon triple bonds. तो ये सबने पढ़ा हुआ है। इनके जनरल फॉर्मूलाज भी तुम्हें पता है, CnH2n+2 जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर अल्केन्स। अल्कीन्स का आता है CnH2n, एंड जब ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी सी द IUPAC नेमिंग, एंड इनका आता है CnH2n-2। होप सो ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट वन अगर हम देखें, सो साइक्लिक, these are further divided into 2. They are homocyclic, या हम इन्हें कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, एंड इसमें दूसरा है होमोसाइक्लिक के अलावा हेटेरोसाइक्लिक। अब नाम में ही मतलब है, अब कार्बन चेन ऐसी है जैसे ये है साइक्लोब्यूटेन, तो दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH2. सो इफ यू लुक ओवर हियर, होमो का मतलब होता है सेम, साइक्लिक मींस द रिंग,
मतलब अगर वो पूरी रिंग में एवरी कॉर्नर इज ऑक्यूपाइड बाय द कार्बन, सो ऐसे वाली रिंग को हम लोग होमोसाइक्लिक। फिर अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड होगा, या बेंजीन जैसा कंपाउंड होगा तो सबको पता है अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। मतलब अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो इसमें भी अगर हम देखें अनसैचुरेटेड में, पर एवरी कॉर्नर इज ऑक्यूपाइड बाय कार्बन, भले सिंगल डबल अल्टरनेट हो, बट द रिंग इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ कार्बन, सो इसलिए हम उसे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। नाउ डिपेंडिंग कि सिंगल बॉन्ड है रिंग में कि डबल बॉन्ड, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज मैंने अभी बताया था एलिसाइक्लिक। इसका एग्जांपल साइक्लोब्यूटेन, तो यू कैन सी मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, CH2 CH2 CH2, so every corner has carbon and each of them has single bond, एलिसाइक्लिक। एलिफैटिक का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड्स, so एलिसाइक्लिक है सिंगल बॉन्ड्स। नेक्स्ट एरोमेटिक जब हम बोलते हैं मतलब देयर इज सम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सो जैसे बेंजीन हो गया, ठीक है, तो बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, बट एवरी कॉर्नर हैज CH 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 CH, so every corner has carbon, so कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। एंड एरोमेटिक इसलिए बिकॉज इट शोज अनसैचुरेशन, एलिसाइक्लिक क्यों? बिकॉज इट इज एलिफैटिक। अब इसमें भी दो टाइप्स है, इसमें भी दो टाइप्स है, बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नाम में मीनिंग है, बेंजोइड मतलब इफ द रिंग हैज 6 कॉर्नर्स विद अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड एंड उसका कोई कंपाउंड है जैसे ये NH2 एनिलीन, तो इसे हम कहेंगे बेंजोइड एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्योंकि रिंग तो कार्बन की, उसको कुछ भी लगे, पर रिंग में तो कार्बन है ना। या नैप्थलीन ले लो, नैप्थलीन में एटलीस्ट एक रिंग तो मिनिमम बेंजीन है, वैसे तो दोनों ही बेंजीन रिंग है, ऐसा होना चाहिए। बेंजोइड कंपाउंड मतलब वो कि रिंग में कोई एक रिंग तो बेंजीन रिंग हो, अगर उसमें मल्टीपल रिंग्स है तो एक रिंग तो बेंजीन मिनिमम होनी चाहिए। एंड अगर 6 कॉर्नर्ड रिंग नहीं है, जैसे ट्रोपोलोन होता है, सॉरी ट्रोपोलोन में देखने को मिलेगा, तो दिस इज ट्रोपोलोन, ठीक है। सो है तो कॉर्नर में हर जगह कार्बन, तो इसलिए होमोसाइक्लिक, एवरी कॉर्नर इज ऑक्यूपाइड बाय कार्बन, नो डाउट, होमोसाइक्लिक। एरोमेटिक क्यों? अनसैचुरेशंस है, बट इट डजंट हैव द 6 कार्बन फॉर्म। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन की रिंग नहीं है, 7 कार्बन की रिंग है, इसलिए हम इसे नॉन बेंजोइड कहते हैं। तो होप सो ये एग्जांपल समझे है। होमोसाइक्लिक होप सो सबको समझा है। अब हेट्रोसाइक्लिक में भी ऐसे ही दो आते हैं। हेट्रोसाइक्लिक नाम में मीनिंग है हेट्रो, जैसे कि एग्जांपल ले लो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। नाउ दिस इज CH2, this corner is CH2, this corner is CH2, this corner is CH2 and this is oxygen. So देखो रिंग में एक कॉर्नर मिनिमम तो ऐसा है जिसमें कार्बन नहीं है, इसलिए ऐसे रिंग को अपन हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। तो मतलब द रिंग इज नॉट, रिंग में कार्बन नहीं, यहाँ पे फिर कोई दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। पिरिडीन अगर ले लो, पिरिडीन अभी एरोमेटिक में आएगा, बट पिरिडीन के रिंग के एक कॉर्नर में तुम्हें नाइट्रोजन मिलता है। सो व्हेन द रिंग हैज अ नॉन कार्बन एटम, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन जो भी हो, तो ऐसे वाले रिंग को हम हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। वापस इसमें दो टाइप है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अगेन एलिसाइक्लिक एंड यू हैव एरोमेटिक। सो रीड करते वक्त हम उसे कैसे रीड करते हैं? हेट्रो एलिसाइक्लिक। जैसे एग्जांपल टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, तुम ये ले सकते हो, ठीक है, या पायरानोज स्ट्रक्चर ले सकते हो, पायरानोज इज दिस। सो 6 कॉर्नर्ड बट एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन अगेन 6 कॉर्नर्ड, तो 4 कॉर्नर पे कार्बन है विद सिंगल बॉन्ड्स। देखो एलिसाइक्लिक मींस सिंगल बॉन्ड्स, तो ये एक है। एंड हेट्रो एरोमेटिक या हेट्रो एरोमेटिक अगर हम बात करते हैं, सो इसमें पिरिडीन ले सकते हो क्योंकि इसमें अनसैचुरेशंस है और एक कॉर्नर पे नाइट्रोजन है। थियोफीन ले सकते हो,
थियोफीन इज हैविंग सल्फर, ठीक है, एंड इट हैज डबल बॉन्ड्स. सो इन दिस वे दिस इज द क्लासिफिकेशन. एक शॉर्ट रिकैप क्लासिफिकेशन का और आज के लिए इतना ही. तो ये वाला तो तुमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, एलिफैटिक ओपन चेन का, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड वालों को अल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड वालों को अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वालों को अल्काइंस. रिंग वालों में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक. अगर रिंग के हर कॉर्नर में कार्बन है, इररिस्पेक्टिव कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, हम उसे होमोसाइक्लिक बोलते हैं. उसके दो टाइप्स, इफ इट इज सैचुरेटेड तो एलिसाइक्लिक, इफ इट इज अनसैचुरेटेड एरोमेटिक. एरोमेटिक में भी दो है, 6 कॉर्नर्ड रिंग वाली रिंग है विद अनसैचुरेशन, बेंजोइड कंपाउंड्स. नहीं है नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स. मैंने एग्जांपल भी दिया था, फिनॉल, एनिलीन, इसमें ट्रोपोलोन ये दिया था. हेट्रो मतलब रिंग में एक नॉन कार्बन एटम है, ठीक है. Here you can see oxygen, here you can see nitrogen. So there is a non-carbon atom in the ring. If the ring is but still alicyclic, मतलब single bonds, तो alicyclic, heteroalicyclic ring. And if it has unsaturation, heteroaromatic ring. So in this way, this is the classification of organic compounds. So बाकी next topic हम देखेंगे अभी अपने next video में. Till then guys, hit the like button, share it with your friends, subscribe the channel. Thank you.